So very good morning to all. So I'll just give you quick feedback. What is corporate governance? कोई थोड़ा सा explain कर सकता है what is corporate governance? थोड़ा सा because last classes में ये discuss हो चुका है what is corporate governance by Jasvi and Shrishti. बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो होता है जिससे कि कंपनीज को रूल किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल किया जाता है बेसिकली Simply किस तरीके से how company ruled and क्या किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कंपनी को. Exactly. तो इसमें it ensures 4 things, that is accountability, transparency, fairness and responsibility, which is already been discussed and soon going to be discussed by Akib. And हमने by Jasvi was discussed कि वो 3 models भी होते हैं इसमें. 2 models were discussed, Anglo-American model, Indian model, and today we will be going to discuss the 3rd model, that is Keiretsu model. So now coming on to the topic, we have some questions, normal GK questions, not so hard. So rapid fire type of questions, like कोई भी answer कर सकता है. Which country is known as the land of rising sun? Japan, right? Which country is known as the land of rising sun? Yeah. Okay, then. नॉर्वे बोलते हैं. Sorry. नॉर्वे को भी बोलते हैं. So basically, but it's Japan only. But वहाँ से Basically, start. नॉर्वे होती है. एक तो संभाल के रखना भी तार में साइड में की हुई है. मुझे डर सा लग रहा है कहीं तू उसके ऊपर रखे और तेरे लैपटॉप में देख रहे हैं. हाँ ठीक है go ahead. Next question: when was the first time World War happened? 1940. And ended? 1980. Right, 1980. Then when was the Second World War 18 या happened? 90 तक चले गए. 18 and तक थी 1970. Next was when was the Second World War happened? 1939. So 1945. 45 में ended. So what were the countries that got affected at that time? Hiroshima and Nagasaki. Country. There were lot many countries. तो basically सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा इफेक्ट हुआ था? कोरिया. It was majorly Japan जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी. Why it affected? I'll tell you later on. But majorly it was affected Japan. So overall, majorly Japan is our topic. That is Japanese model, also known as Keiretsu model. So the objectives will be understand the historical evolution of Japan economy. Japan's culture and economic history has influenced the business structure, the OECD principles of corporate governance and benefits of OECD principles. वर्ल्ड वॉर 1 से क्या लिंक था इसका बाय द वे? Sir, I'll come to it. So before starting with the topic, there is another question. Who was the first person who came to India by the sea route? Vasco da Gama. And can you tell me the year? 1498 approx. Yes, exactly. To be very specific, 20th May 1498. So from which country was Vasco da Gama? Sorry? जर्मनी. कोई जर्मनी पहुंच जाएगा. कोई बता सकता है? Even sir can answer. पोर्चुगल. Yes, that is correct. That is Portugal. But वो आया क्यों था इंडिया? भटकने वाले वो कहीं और जाना चाह रहा था, मगर वो भारत की खोज कर गया उसने बीच में. But कुछ तो किया. वास्को डी गामा इंडिया आया, क्या हुआ हमारी कंट्री में चेंजेस? ओके, व्हाट ही वेंट फॉर बेसिकली. Yes. क्या खोजने गया था वो? नहीं, बेसिकली इंडिया में क्या चेंजेस आए वास्को डी गामा के आते ही? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो खोजने क्या गया था पहले. व्हाट ही वेंट टू सर्च. People. क्यों? पोर्चुगल में क्या लोग नहीं थे क्या? नहीं मतलब दूसरे कल्चर मतलब और कहाँ है? लोग खोजने क्यों आए? Okay, he went for the discovery of actually US, America, but he discovered India basically. So अब वो इंडिया आ चुका है. अब इंडिया में आके हमारी कंट्री में क्या चेंजेस आए? थोड़ा सा आइडिया. बिजनेस इंक्रीज हो गया ये सब. सॉरी बोलो. बिजनेस वगैरह इंक्रीज हो गया. एग्जैक्टली, मतलब कि बिजनेस
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज किया एंड जिससे कि हमारे कमर्शियल चीज़ें आने लग पड़ी इंडिया में। इवन कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो सिमिलरली हम लोग देखेंगे जापान में इन 1543 में पोर्चुगीज ट्रेडर्स केम टू जापान इन तेंगुसनी आइलैंड, जिसमें के लिए उन लोगों ने कल्चरल एंड कमर्शियल एक्सचेंज करना आने स्टार्ट हो गए। जैसे कि इंडिया में हुआ वैसे ही सेम जापान में भी होना स्टार्ट हुआ। अब 1544 में क्या होना स्टार्ट हुआ कि 9-1 ट्रेड पीरियड आया, जिसमें कि जापान ने ऑलमोस्ट जितने भी आर्म्स है, आर्म्स लाइक वेपन्स, गन्स, इवन एवरीथिंग छोटा छोटा जो उस टाइम पे इन्वेंटेड थे वो सब वो लोगों ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जापान ने। इवन द शिप्स, जापान इज अ पोर्ट, मतलब वो थोड़ा सा एक्सक्लूडेड है, उसके अराउंडेड सारा का सारा वाटर है, तो उन्होंने शिप्स को इंपोर्ट करना लग पड़े, एक्सपोर्ट करने लग पड़े, मर्चेंट नेवीज एंड ऑल सब कुछ आने लग पड़ा। एंड द मेजर थिंग दैट केम इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज अ कल्चर जो बहुत जल्दी फैलने लग पड़ता है, तो इवन क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो माय मेजर क्वेश्चन इज वहाँ पे पहले कौन सा रिलीजन था? व्हाट इज द मेजर रिलीजन दैट जापान फॉलोज? दैट इज इजी, थोड़ा सा एक तो आएगा, Buddhism, and there is one more, that is Shintoism. There is Shintoism, उनका major culture है, but they follow Shintoism and Buddhism too. And even 1544 में Christianity भी उनकी कंट्री में फैलना स्टार्ट हो गई। जिससे क्या हुआ 1603 में, लाइक सिमिलरली जैसे इंडिया में एक एम्परर है, दिल्ली में बैठा है एंड बाकी स्टेट्स उसके अंडर आती हैं, वैसे ही तोकुगावा आइजैक एक वो था वहाँ पे लीडर था जिसके अंडर बाकी एम्परर्स आते थे, जो कि तोकुगावा उनकी कैपिटल में बैठा था। कैपिटल वाज ईडो, नाउ नोन एज टोक्यो, ठीक है, जो उनकी मिलिट्री पावर थी उस टाइम पे। एंड दे ऑलमोस्ट रूल फॉर 260 ईयर्स। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, 260 ईयर्स के लिए उन्होंने वहाँ पे पूरा अपनी कंट्री में रूल किया। देन 1639, अब देयर वॉज वेरी मच लाइक तोकुगावा को ना बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा कि वाई वेस्टर्न कल्चर इज कमिंग टू आवर वर्ल्ड, आवर कंट्री बेसिकली। तो उनको था कि अपने रिलीजन को छोड़ के वाई आर यू एक्सेप्टिंग अदर्स रिलीजन, वाई आर यू डूइंग ट्रेड विद अदर पीपल। अपना बेसिक आप जो अपना कल्चर था, ट्रेड था, वो सब कुछ छोड़ के अपने वेस्टर्न कल्चर को स्टार्ट कर दिया एक्सेप्ट करना। बट देन ही डिसाइडेड टू मेक दी सोकुगु पॉलिसी, जिसमें उन्होंने आइसोलेट कर लिया जापान को, आइसोलेटेड जापान फ्रॉम आउटर वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर 218 ईयर्स। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया फ्रॉम आउटर वर्ल्ड कि हम लोग किसी भी कंट्री के साथ कोई भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई बाहर जापान से जाना चाहता है या बाहर से अंदर आना चाहता है तो उनकी डायरेक्ट डेथ पेनल्टी है, कोई भी दे विल नो एनी अदर चांस कि वो जिंदा रहे, सीधा डेथ पेनल्टी मिल गई उन लोगों को। 218 साल कब से कब तक थे? सॉरी 218 साल कब से कब तक थे? सर आएगा, इट्स कमिंग। सो ये इस टाइम पे वो लोग थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर रहे थे विद चाइना एंड कोरिया। दैट वाज वेरी माइनर बिकॉज चाइना एंड कोरिया बिल्कुल उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, तो उनके साथ वो थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर रहे थे विच वाज वेरी लिमिटेड, मतलब कि बेसिक चीज़ों के लिए वो ट्रेड कर रहे थे बट वेरी लिमिटेड। तो आइसोलेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम 1639 में हुई थी। Population मतलब complete. Now comes the isolation end. The era of shogunate area that ended. It ended at 1853 by Matthew C. Perry. End of isolation. इन्होंने क्या किया? They came from the west and they started saying कि अब हम लोगों को जापान के साथ ट्रेड करना is very important. तो they decided कि हम लोग isolation को end करेंगे. So they opened 2 ports in Japan, Hokuda Island and Shimoda. Now Americans was not happy with this कि सिर्फ 2 पोर्ट्स क्यों खुले हैं, सिर्फ 2 पोर्ट से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दे डिसाइडेड कि 4 और पोर्ट्स खुले जाए, दैट वाज हैरीज ट्रीटी। नाउ एवरी एम्परर वाज नॉट हैप्पी विद दिस। एट दिस टाइम कोमोई वाज द एम्परर। कोमोई एम्परर ने ये सारी अपने आप ही सारी की सारी ट्रीटी साइन कर दी, बट
जो बाकी एम्परर्स थे, कोई एम्परर को छोड़ के, तो लीडर उसको छोड़ के बाकी सब वर नॉट हैप्पी फॉर दिस ट्रीटी कि हम लोग आइसोलेशंस में थे इतने साल तक, बट अब आइसोलेशंस क्यों टूट गई, दे वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस. सो 1867 में कमोई डाइड, उनका बेटा केम टू द पावर, दैट वाज द एम्परर मेजी. द एम्परर मेजी केम टू द पावर. द एम्परर मेजी जब पावर में आए तो बहुत सारी चीजें चेंज होने लग पड़ी. इवन द आइसोलेशन वाज बिल्कुल खत्म कि आइसोलेशन नहीं होगी, विल चेंज एवरीथिंग इन द जापान. What are the changes that came to the Japan was, this is Emperor Meiji for you guys. This is Emperor Meiji. तो the Meiji Restoration came. इन्होंने सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पूरा चेंज कर दिया जापान को. सोशली कैसे चेंज हुआ, उन्होंने क्लास सिस्टम खत्म कर दिया. लाइक इंडियन क्लास सिस्टम है ना, वैसे वहाँ पे क्लास सिस्टम था, वहाँ भी चेंजेस होने स्टार्ट हो गए. इवन एजुकेशन सिस्टम, सबको एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने. पीपल जैसे इंडिया में कि इन लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, वैसे जापान में है, वहाँ नहीं पढ़ाना है. तो ही स्टार्टेड सेइंग नहीं, एवरीवन शुड बी गेट एजुकेटेड. वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. लाइक जो जापानीज कल्चर था उसको थोड़ा, जो लगता था कि द थिंग्स विच आर नॉट राइट दे आर एक्सक्लूडेड है, और जो वेस्टर्न कल्चर की चीजें थी उनको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया. सोशली ये सब चीजें आई. पॉलिटिकली क्या आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दी मेजी ने. सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हुआ कि मेजी के, एम्परर मेजी के अंदर लोग काम, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी. So that was one of the political things that we did. Even political systems जो वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट करती थी, वो सारी की सारी इन्होंने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी. Even they wanted to protect Japan from the, even they wanted to protect Japan from the western countries. उन्होंने देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का सिनेरियो था, हमने वेस्टर्न चीजें अडॉप्ट की, अब वो वेस्टर्न चीजों ने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था. बट दे डोंट वांट कि वो लोग हम पे रूल करें. तो मेजी वांटेड कि वो लोग हम पे रूल ना करें. तो दे मेड इट क्लियर कि हम लोग उनकी चीजें, पॉलिसीज को हम अडॉप्ट करेंगे, बट दे कांट रूल ऑन अस बेसिकली. इज दैट क्लियर? देन इकोनॉमिकली दे चेंज अ लॉट. चेंजेस लाइक उन्होंने रेलवे स्टेशंस को बनाना स्टार्ट किया, रोड्स बनाना स्टार्ट किया. इवन उन्होंने स्कूल्स बनाना स्टार्ट किया, मिलिट्रीज को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया. ये सब होने लग पड़ा. इवन द करेंसी वाज इंट्रोड्यूस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? Yes, that was introduced at that time. So this all over thing lead to the modernization of Japan. Socially, politically and economically इसमें क्या हुआ, जापान पूरा मॉडर्नाइज हो गया. So in 1871 में क्या हुआ कि जापान इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उन्होंने ताइवान की कुछ टेरिटरीज पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया. इवन जो जापान के आसपास वाले आइलैंड्स थे उन पे तो उन्होंने अटैक करके उनको अपनी तरफ कर लिया था, बट some part of Taiwan they attacked and they marked their territory over there. In 1879 there was a rapid change in their industrial economy. उनकी इकोनॉमी एकदम से बूस्ट करना स्टार्ट कर दी. हाउ? दे अडॉप्टेड वेस्टर्न पॉलिटिक्स, जुडिशियल सिस्टम, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस. दिस टाइम वाज द टाइम जब जापान वाज द मोस्ट पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा बेटर, अगर आर्मी या फिर कुछ भी बोल दे, कोई सबसे बेस्ट कंट्रीज में से थी, तो दैट वाज जापान. हाउ? दैट वाज बिकॉज उनके पास अमेरिकन वेपन्स थे, ब्रिटेन की नेवल सिस्टम था एंड जर्मनी की आर्मी थी. दिस वाज द थिंग दैट मेड देम मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. द इमर्ज ऑफ इंपीरियल जापान. नाउ विल गेट टू नो कि जापान ने कितनी कंट्रीज को अपने अंदर कैप्चर किया. तो जापान वाज द मोस्ट मॉडर्न आर्मी एट दैट टाइम. ठीक है, तो मेजरली उनका टारगेट क्या था? कोरियन चाइना, कि हम कोरियन चाइना को अपने अंडर कर लेंगे. तो इवन 1894 में सीनो जापानीज वॉर हुई. सीनो जापानीज वॉर इज ताइवान जापानीज वॉर. ये ताइवान के साथ उन्होंने अटैक किया एंड दे वन ओवर देयर. पूरा ताइवान जापान के अंदर आना स्टार्ट हो गया.
नेक्स्ट इज 1904 रूसो जापानीज वॉर। रूसो में मतलब रशियन जापानीज वॉर, जिसमें उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया को भी अपने अंडर लाना स्टार्ट कर दिया। देन केम 1910 व्हेन कोरिया स्टार्टेड अ ट्रीटी विद देम। कोरिया सेड कि हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को नहीं लड़ना है, सिंपल है कि हम लोगों को कोई वॉर नहीं चाहिए, विल साइन अ ट्रीटी विद अपने आप ही अपने अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे, बट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वॉर एंड ऑल। नेक्स्ट इज द कैप्चरिंग ऑफ द अदर कंट्रीज। इन 1913 दे कैप्चर्ड सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी टू, जो पैसिफिक में है, दे स्टार्टेड कैप्चरिंग दैट पार्ट। नाउ इवन द सम पार्ट्स ऑफ चाइना, जो उनकी पास वाले थे, जापान के पास वाले, वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने कवर करना। 1931 में जापान ने पहले तो थोड़ा सा कवर किया था, नाउ 31 में उन्होंने पूरा का पूरा चाइना को अपने अंडर कर लिया। 1941 में उन्होंने हवाई पे अटैक कर दिया। वेयर इज हवाई नाउ? थोड़ा सा जीके तो मुझे चाहिए। ये कंपनी नहीं जगह का नाम कहाँ का है? कौन से कंट्री का है? जापान मत बोलो, वही काम भी नहीं पड़ी। बताइए। वो हवाई है। हवाई हवाई और हवाई क्या कर रहे हैं? It is the island of US. Okay. जिसकी वजह से 1942 में उन्होंने सिंगापुर और हांगकांग में अटैक कर दिया। हांगकांग भी उनके अंडर आना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली 1941 वाला आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि हवाई पे उन्होंने यूएस पे अटैक किया था, राइट? तो यूएस ने भी कुछ गिव बैक किया था, किसी को पता है क्या किया था? न्यूक्लियर बॉम्ब। Exactly. And bomb's name? एक का नाम था फ्रेंड बॉय, And the other? नहीं पता। मुझे नहीं पता that I know. फैट बॉय और लिटिल ऐसे कुछ करके था। लिटिल मैन ऐसे ही कुछ था। लिटिल मैन। तो जो हवाई वाला था बेसिकली इट वाज पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर मूवी देखी आप लोगों ने? आपके बताने के बाद देखी थी? ओके। तो कामाकाजी मैंने बताया था आप लोगों को, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। 1941 में वो 42 में हुआ था। Sir, it was जो like अटैक हुआ था 42 में हुआ था मेरे ख्याल से। it is like कि exactly dates ना 40 नहीं, जापान ने अटैक लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ यूएस ने जो करा, हाँ जो US ने 45 में किया सर। यूएस ने 45 में करा। That I'm coming right now Okay. afterwards. एंड ओके। तो हवाई भी दो बेसिकली स्टेट्स हैं यूएस के जो इट हैज बीन बॉट। वन इज अलास्का। अलास्का किससे खरीदा उन्होंने? रशिया से। और हवाई किससे खरीदा? हवाई किससे इनसे खरीदा होगा मेरे ख्याल से, या लिया होगा जापान से, Yes sir. या इट वाज टेकन ओवर। तो यूएस के 50 स्टेट्स हैं, पहले 48 थे फिर दो बढ़ गए। Now at 1945 World War II came, as you guys know. World War II में जापान started losing everything that they have. उन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया। दे जितना इन्होंने ये सब कैप्चर किया, they started losing it. Like they were like कि हम लोग हैंड रेस कर देंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है इतना सब कैप्चर वाला, हम लोग जितना जापान पहले था हम उतना रखेंगे। So this is Japan before the World War and this is after World War. गरीब नहीं है, this is after attack. After this was the condition. So सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो how Japan become this right now? From this to this and now this. चलो प्रेजेंट में आ रहे हैं। अभी स्टार्ट हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नहीं अभी भी टाइम है बिकॉज थोड़ा सा अभी भी हिस्ट्री बाकी है। 200 सालों का इतिहास हो गया। So should I proceed? तो there was the rise of Keiretsu system. तो बेसिकली हमारी सारी की सारी सिटीज लाइक नागासाकी, हिरोशिमा वर डिस्ट्रॉयड सिस्टम प्रॉपर्ली। क्या होता है?
Sorry, Keiretsu system. you'll get to know afterwards. ये हमारी क्या मतलब क्या, वो तो जापानीज हो गई क्या? Sorry. मगर तो हमारी सिस्टम कह रही ना। Sorry. Interaction. Industries and factories were fully damaged at that time. Food shortage होने लग पड़ी. Even unemployment increased at that time. So basically ये सब हमारे प्रॉब्लम वहाँ फेस होने लग पड़े उस टाइम पे. तो इससे हमारा कैरेक्टर सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ था. I'll come to it. What is the question? Now, at the time of 1945, जब वर्ल्ड वॉर खत्म चल रही थी ऑलमोस्ट, until 1948, Zaibatsu was the leader, emperor, जो उस टाइम पे रूल करता था. So उनकी 3 कंपनीज थी जो मेजरली Mitsui and Sumitomo. Sorry, the pronunciation can be wrong, but this was the 3 major companies जो उस टाइम पे रूल करती थी, जिनका काम था जैसे कि वो हैवी इंडस्ट्रीज देखते थे, बैंकिंग सिस्टम देखते थे. सिमिलरली Mitsui भी बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड देखता था, और दूसरा वाला द लास्ट इज मेटल एंड बैंकिंग मशीनरीज देखता था वो सब. अब ये 3 कंपनीज या फिर 3 फैमिलीज जो थी, ये ही लोग ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी को चला रहे थे. लाइक किसी को अगर बैंकिंग में जाना है, किसी को पैसे चाहिए तो उनसे लेने पड़ेंगे, किसी को कुछ चाहिए तो उनके पास आना होगा, सब कुछ इन्हीं से लेना पड़ रहा था. द प्रॉब्लम वाज व्हाई देम, कि इन्हीं से क्यों लेना सब कुछ. सो दिस लीड टू Keiretsu. Now, what is Keiretsu, right? सृष्टि का क्वेश्चन था. तो इट्स बेसिकली द क्रॉस शेयर होल्डिंग. अगर फॉर एग्जाम्पल गिव मी ए कंपनीज नेम, 2 कंपनीज नेम, कोई भी दे दो. रिलायंस एंड टाटा. नाउ अगर मेरे शेयर्स रिलायंस में है एंड टाटा में है, तो हमारे शेयर्स रिलायंस में भी होंगे और टाटा में भी होंगे, इंटर क्रॉस ऑफ शेयर्स. ठीक है. अगर मेरे शेयर्स ए कंपनी में भी है तो हमारे बी में भी होंगे. अगर बी से ले रहे हैं तो बी के ए में भी होंगे. अगर सी में ले रहे हैं तो हमारी तीनों ट्राइंगल्स में होंगे. गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. शेयर होल्डर्स बेसिकली अगर एक कंपनी में है तो अगर वो दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैं बी कंपनी के शेयर्स खरीद रही हूँ, तो इवेंचुअली बी कंपनी भी ए कंपनी के शेयर्स खरीदेगी. कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए और बी में. हाँ, बट इनका बेसिकली फंडा था कि हम लोग हर कंपनी में शेयर होल्डर्स रखेंगे सो दैट हमारी रैपिड इंक्रीज हो इकोनॉमी में. मतलब कॉमन होंगे, एक ही बंदा तीनों खरीदेगा. कॉमन नहीं होंगे सर. अगर जैसे कि आप और मैं हूँ, अगर कोई और जर्नली बंदा है, आपकी कंपनी है, आप मेरे शेयर्स ले रहे हो, तो इवेंचुअली मैं आपके भी शेयर्स ले लूंगी सो दैट हमारे शेयर्स रहें और हमारी कंपनी ग्रो करे. Was it a guideline compulsory या it was optional? या दिस इज अ मॉडल. तो बेसिकली गाइडलाइन ही है जिसमें क्रॉस शेयर होल्डिंग्स होते हैं. इसमें सिर्फ एक बैंक होता है, मेन बैंक सिस्टम के. आप बाकी बैंक के पास नहीं जाओगे, सिर्फ एक ही बैंक के पास आओगे जिससे आपको फंडिंग मिलेगी. आप लोन्स वोन्स मत लो, आप बैंक के पास जाओ, आपको बैंक से पैसा मिलेगा. करेक्ट, क्लियर? इससे फायदा क्या हुआ, इस टाइम पे लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप होगा. बाकी जो हमारे बाकी मॉडल्स थे उनमें ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था. दिस वाज नॉट लॉन्ग टर्म. 1945 में स्टार्ट हुआ. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि अभी वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे, तो इतनी देर में इन लोगों को लॉन्ग टर्म वो शेयर होल्डर्स टिके रहे एंड उनका रिलेशन इतना अच्छा बना रहा. सो इसके बेनिफिट्स क्या हुए? बिजनेस में स्टेबिलिटी आने लग पड़ी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिलने लग पड़ी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आने लग पड़ा हमारे में, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन टेकओवर्स भी होने लग पड़े. तो आई होप कैरेक्टर्स आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ हो. ठीक है. नाउ हमने 3 मॉडल्स पढ़ लिए, दैट इज एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जापानीज मॉडल एंड इंडियन मॉडल. सो दीज 3 मॉडल्स आर क्लियर टू यू गाइस. आई विल गिव यू ब्रीफ. ठीक है. व्हाट इज एंग्लो अमेरिकन मॉडल? एंग्लो अमेरिकन मॉडल में हम लोग मेनली शेयर होल्डर्स को देखते हैं. शेयर होल्डर सब कुछ देख रहा है. इंडियन मॉडल में शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स दोनों आते हैं. एंड जापानीज मॉडल में जनरली सारे के सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, जितने भी जो भी छोटे छोटे लोग होंगे वो सब आएंगे. तो नाउ कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसका नाम इज OECD.
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेट एंड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सिस्टम कैसे होगा कि जितने भी रूल्स हैं हम लोग वो सारे के सारे फॉलो करें, जो भी कंपनी के रूल्स हैं बेसिकली। ये जापान की संस्था है। सर नो, वो जापानीज मॉडल वहाँ खत्म हो गया। नाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम तो जापान की बात कर रहे हैं अभी यहाँ। हो गया वो खत्म सर। नाउ कम्स द प्रिंसिपल्स। ये बोनस है। नो, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय अच्छा ये ओके टॉपिक। ओके ठीक है ठीक है। फेयर शेयर होल्डर राइट्स, हर शेयर होल्डर को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू एवरीथिंग। नाउ कम्स द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड मार्केट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर किसी की प्रॉपर्ली डाइवर्ट हो। देन रिस्पेक्ट फॉर द शेयर होल्डर, हर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए शेयर होल्डर की, कि अगर ये शेयर होल्डर इज हैविंग मोर शेयर्स तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा, किसी की कम है तो वो रिस्पेक्ट कम हो, ऐसा नहीं हो, रिस्पेक्ट इक्वली हो। Then come clear information and transparency. Clear information and transparency, जितने भी rules है, regulations है, वो clearly हर एक board member को बताए जाए। Duties of the board, like क्या क्या काम है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके अंडर, सबको देखना, monitor करना। These are the 6 principles जो corporate governance के। Why it is important? So that to protect investors जितने भी इनके अंदर काम कर रहे हैं। Now for improve company performance, reduce corruption, strengthen financial market, increase global investments. Now there should be one question from sir, I don't know why it didn't came. तो ये इसका एग्जाम्पल सर पूछते, तो बेसिकली टाटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो सेबी को लेता है। सेबी राइट, इसकी एग्जाम्पल इसमें आना चाहिए, तो सर का क्वेश्चन सर ने नहीं पूछा। नहीं पूछने वाला अभी चिंता मत करो। ये ओईसीडी के बारे में आपने ये बताया, कुछ बताया Yes, sir. संस्था के बारे में तो बताओ। व्हाट एग्जैक्टली ओईसीडी, व्हाट डज इट डू, सर हेड ऑफिस है? सर बेसिकली हर एक कंपनी अपने आप रूल करती है, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा ने अपनी एक वो बनाई सेबी। आप उसका बता रहा हूँ कि हाउ टू रेगुलेट। Yes. आई एम आस्किंग कि ओईसीडी अपने आप में भी एक संस्था है। हाँ, तो उसके बारे में हम आस्किंग, क्योंकि आप उसको प्रिंसिपल बता रहे हो ना, ऐसे प्रिंसिपल किसके, ओईसीडी के बता रहे हो अभी आप। हाँ जी। टाटा के भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, रिलायंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तो ऑल कंपनी दे हैव गॉट। ये जो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ओईसीडी जो है, इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रेगुलेट्स काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जांपल फॉर दिस, दैट इज टाटा, जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ठीक है, चलिए आप बात बताइए। So we have discussed the importance. Now the conclusion is Japanese evolved from isolation to modernization. कैसे isolation से modernize किया उन्होंने, मेजी रिफॉर्मेशन से हम लोग कैसे इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली चेंजेस देखे हम लोगों ने। पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग लीड टू राइज ऑफ केरेत्सु सिस्टम, केरेत्सु इन शॉर्ट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने देखा कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हमारे इन जापान की। एंड OECD principles strengthen corporate governance. So thank you. If you guys have any questions, can ask me anytime. I think let's have a clap for her.